Hello, Namaste everyone. My name is Muskan Surana and I have done my post-graduation from NIT Raipur. In the year 2023, I have secured All India rank 1543 in the examination called IIT JEM. Right now, I am mentoring the students of JEE Foundation in their preparation, and today for this demo session, I took a topic differential equation of mathematics, which is a very important part when we are preparing either for the boards or while we are preparing for the JEE Mains and the advanced. So be with me for the next few minutes to understand how I will teach. Okay, firstly we will start with the understanding of the term. What do we mean by the differential equation? In this word only we are having the answer, differential equation. Any equation in which at least one term is consist of the derivative term. Derivative term means what? It can be first order, it can be second order, it can be more than second order. So what we are writing? Any equation which is consist of at least one derivative term is called differential equation. Now, I have written the three order derivative, first order, second order and third order. We can make the differential equation from any part. We can make more than the third order derivative also, but right now I am writing that much only. Now, if I will make from this a simplest differential equation, so what I can do? It is equal to some constant. So I can take any constant, let it is equals to the 5. So dy by dx is equals to 5. It is a differential equation because it is the equation in which at least one term is consist of the derivative. Now if I will write the second order derivative, I can write with the trigonometric function also. Trigonometric function can I write with the 10x. d2y upon dx square is equals to 10x. We can write anything with the exponential also, log also, and many more inverse trigonometric function also. So if I will say the third order derivative d3y upon dx cube is equals to e power x. These are the examples of the differential equation. What is the one thing we have to remind? At least one is there. In the definition what we have? Any equation in which at least one term contains the derivative term. It can be more than one also. It means what? Right now what we are having here, a second order derivative with the power of 3 minus first order derivative with the power of 2 plus y is equals to 5 plus cos x. It is also an example of differential equation. But make sure what we are learning, at least one, not fixed one. So any equation in which at least one term is of the derivative term, then it is known as the differential equation. Now, first we will see how we are moving in this video. Differential equation is a very vast topic, and in this we are having so many things to learn about. In this we are having the order and the degree of a differential equation. We are having so many methods to solve a differential equation. We are having so many methods to solve and get an answer for a differential equation. Just like we are having the variable separable, we are having the reducing variable separable, we are having the exact differential equation, we are having the linear homogeneous method, we are having the reducing linear homogeneous equation, and lastly we are having the formation of a differential equation. That much things we are having, but today we are doing the order and degree and we are seeing the two methods how to solve a differential equation. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ये समझने के लिए कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कि हम ऑर्डर से और डिग्री से क्या समझते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट द डेफिनेशन इज, the highest order derivative present in a differential equation is called its order. इसको हम देखते हैं, हमने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल्स देखे थे उन्हीं से हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर। तो हमारे लिए पहले वाले का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वहीं पे हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितने डेरिवेटिव है, ओनली 1। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर भी इतना ही हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो चुका है, 2। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके अंदर क्या हो गई है, हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। किसी इक्वेशन के अंदर अगर सिंगल डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो वो जिस भी ऑर्डर का है वही उसका ऑर्डर है, लेकिन इस एग्जांपल में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर भी है, हमारे पास सेकंड ऑर्डर भी है। तो डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट होगा उसी को हम बोलते हैं उसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
Is it clear? Okay, now we will see what do we mean by the degree of a differential equation. Previously what we have learned, what do we mean by the order. Order means what? कोई भी differential equation का highest order derivative क्या है, उसे हम बोलते हैं उसका order. Now we are learning what do we mean by the degree of differential equation. The highest power of the highest order of derivative. What it means, for example, if you will write, we are having d2y upon dx square whole power 3 minus dy by dx whole power 4 plus y is equals to 5 plus cos x. Now, okay, now I erase the previous example. Now we are having this example. In this what we have? Second order derivative of power 3, second order derivative of power 4, first order derivative of power 5 and cos x. Now first we will read the definition again. Highest power of highest order. What is the highest order? Order is 2. Here also we are having the second order and first order. So what is the highest order we are having? Order is equals to 2. Now highest power we have to see for the highest order. Highest order we are having here also second order, here also second order. But what is the highest power we are having? 4. So it will become degree is equals to 4. अब हम समझेंगे इसका हाफ पार्ट. Till now what we have learned the definition is the half part. Order of differential equation means क्या हुआ? The highest order derivative present in a differential equation. So what is the highest order? Here we are having the first order, here we are having the second order derivative. So right now the order of a differential equation is what? 2. Now what the definition is saying? The highest power of highest order derivative. We are just seeing the highest power of the highest order. Highest order is 2 and what is the power of the highest order? Which is 3. It will become the degree is equals to 3. It means what? The highest power of the highest order of a derivative present in the differential equation is known as the degree. That what we have written. Now we will see the very important thing a part of that. What is written? Provided all the terms present in the differential equation are made free from fraction, radical sign, trigonometry, inverse trigonometry, logarithm and exponent. Now what is the meaning of that? It means whatever the derivative term you are having in a particular differential equation, it should be free from the fraction. Fraction means any form of p by q. It should be free from the radical sign. Radical sign means what? It should be free from the square root, cube root. It should be free from all the 6 trigonometric ratio. It should be free from all 6 inverse trigonometric ratio as well as from the log and from the exponent. Means whatever the differential equation term we are having, it should be free from all these 6. First we will see the example on that. तो चलिए अभी जो हमने हाफ पार्ट पढ़ा है डिग्री की डेफिनेशन का, उसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं. अगर मैं लिखती हूँ log ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस 1. ना ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हाईएस्ट ऑर्डर इसका 1 हो चुका है. ऑर्डर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑर्डर जो है वो 1 हो गया. लेकिन अगर हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? डेरिवेटिव टर्म जो है लॉग के साथ आ रहा है. डेफिनेशन में क्या लिखा है? प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव टर्म शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, रेडिकल साइन, लॉग, एक्सपोनेंट एंड एवरीथिंग. बट वी विल नॉट डायरेक्टली से दैट फॉर दिस वन डिग्री इज नॉट डिफाइंड. पहले हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि क्या हम डेरिवेटिव टर्म को फ्री कर सकते हैं लॉग के साथ या नहीं. बिल्कुल कर सकते हैं. आइए देखिए, अगर मैं लॉग को दिस साइड शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस वाई. तो हमारे पास अब क्या हो गया? बोथ आर सेम ओनली, बट इन दिस व्हाट वी आर हैविंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डेरिवेटिव टर्म इज फ्री फ्रॉम द लॉग नाउ. डेफिनेशन इज नॉट सेइंग कि हमारे पास x और y के साथ एक्सपोनेंट नहीं आ सकता है, उसके साथ आ सकता है. लेकिन जो भी हमारा डेरिवेटिव टर्म है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो हमारा सेकंड ऑर्डर हो, चाहे वो हमारा थर्ड ऑर्डर हो, उसके साथ लॉग, एक्सपोनेंट, इनवर्स, फ्रैक्शन, रेडिकल साइन कुछ भी नहीं आना चाहिए. चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं. अगर मैं लिखती हूँ लॉग ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस dy अपॉन dx. सबसे पहले हम इसका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं. इसका ऑर्डर क्या होगा?
यहाँ पे हमारे पास दो डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है, एक फर्स्ट ऑर्डर का एक सेकंड ऑर्डर का। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस वन। सो हमारा यहाँ पे इजीली आ गया ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। अब हम देखते हैं क्या इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पॉसिबल है या नहीं। ओके, सेम क्वेश्चन है पर यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं इस साइड से लॉग रिमूव करती हूँ तो इस साइड क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट आ जाएगा। एक्सपोनेंट आ जाएगा दोनों के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लॉग को इस साइड शिफ्ट करती हूँ, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर x डॉट e की पावर dy बाई dx। हम इसको उस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, सेम बेस पावर इज एडेड, सो e पावर x प्लस dy अपॉन dx। अब क्या हुआ है, यहाँ से तो लॉग हट चुका है पर यहाँ पे जो एक डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट था इसके साथ एक्सपोनेंट आ गया। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ यू विल रिमूव द लॉग फ्रॉम दिस साइड यू आर गेटिंग द एक्सपोनेंट दिस साइड, इफ यू विल रिमूव द एक्सपोनेंट फ्रॉम दिस साइड यू आर गेटिंग द लॉग दिस साइड। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन degree is not defined. So what you will write, simply you will write degree is not defined. Okay, it means degree may be possible, may not be possible, but in the starting of that any differential equation we will not say whether it is possible or not. First our step number 1 is what, we will try to remove that. Try to remove that means if you are having a fraction, okay, we will see the another example in which we are having the derivative term in the fraction. Let's see that part. Okay, now we will see an example in which the derivative term is present in the fraction. So for this we have to see from the starting only that whether we are able to calculate the degree or not. In the starting we will not say the degree is not defined. First we will try to remove the derivative term from the denominator. For that what we will do, फर्स्ट वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बोथ द टर्म्स विल मल्टीप्लाई दिस साइड, इट विल इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव होल स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई बाय सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 3xy प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ इफ वी विल सी व्हाट इज द ऑर्डर, हियर यू आर हैविंग द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। सो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर वी आर हैविंग, हाईएस्ट ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। Now if you will talk about the degree, now degree is possible because it is removed from the fraction. Now here what is the power we are having for the second order, 1. What is the power we are having, 2. So highest power is 2, so order is also 2, degree is also 2. So what we learned from this side, that sometime it may be possible, sometime it may be not. What we have to learn, that if we tried and we are unable to remove also, then we will say the degree is not defined. If all the derivative terms present in the differential equation can't be made free from all the 6 means whatever may be it fraction, it may be log, it can be exponent, it can be radical sign. What is the meaning of radical sign? For example, if I will look here, just made a random equation we will make. Y first derivative is having the power 1 by 3 is equals to x. Now this is known as the radical sign. Right now what is the order we are having, it is the first order we will have, but if we are able to remove this radical sign then you will see the degree is defined, otherwise no. Okay, if you will remove this 1 by 3 to this side, what it will become, power will go this side, it will become x cube. Now we are having a differential equation which is free from the radical sign. It can be any form also. If I will write instead of 1 by 3, if I will write 1 by 2, it will become x square. So right now what we have, order is also equals to 1, degree is also equals to 1. It means if it is possible to remove all of them then degree is defined, otherwise we will say degree is not defined. Is it clear? Okay, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसका मतलब जैसे कि हमको पता है हर इक्वेशन के रूट्स प्रेजेंट होते हैं, हर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, उसी तरीके से हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होता है। लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, क्योंकि जो हमारे 12th की जे मेंस की और जे एडवांस की सिलेबस में है वो सिर्फ उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है जो आपके फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के अंदर प्रेजेंट हो। तो हम हायर ऑर्डर्स कब पढ़ेंगे,
जब आप जेईई मेंस क्लियर करके आईआईटी बॉम्बे जा चुके होंगे, वहाँ आप जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर, सेकंड डिग्री, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं और उन डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। लेकिन जो भी हमारी 12th का सिलेबस है, या हम कहें कि जेईई मेंस और एडवांस का सिलेबस है, उसमें सिर्फ इतना है कि हमको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड है। सबसे पहला मेथड है हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से क्लियर हो रहा है, वेरिएबल को सेपरेट कर दो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अभी हमने नोट किया है कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत ही इजी से लिखते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू, अभी हम लिखते हैं किसी कांस्टेंट के साथ, अभी हम इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं लेके आते, इसको कर दिया हमने 2। ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरे पास कितने वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। तो मैं क्या करूँगी, इस dx को मैं इस साइड लेके जाऊँगी, ताकि क्या हो, y सारे एक जैसे वेरिएबल LHS में हो जाए और सारे एक जैसे वेरिएबल RHS में हो जाए। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, dy इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dx। अगर हम दोनों जगह इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इट विल इक्वल्स टू y, 2 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x प्लस c। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया dy/dx इज इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल कि हम सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर दें? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं इस अंडर रूट वाले पार्ट को LHS में लेके जाऊँ और dx वाले पार्ट को RHS में लेके जाऊँ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy/dy 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x डॉट dx। अगेन हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो गए, y की टर्म सारी LHS में आ गई, x की टर्म सारी RHS में आ गई। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हमको y हमेशा LHS में और x हमेशा RHS में रखना है, जस्ट वी आर गोइंग विद दैट फ्लो। अगर आप क्या करते हैं, x को LHS में रखते हैं और y को RHS में रखते हैं, देन ऑल्सो यू विल गेट द 110% सेम रिजल्ट्स होंगे। ओके, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन आता है आपको, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है लॉग मॉड ऑफ y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस c। तो याद रखिए, जब भी हमारे पास क्या होगा, हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकालते हैं, हमारे पास ऑलवेज एक c होता है। इस c को हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और जब भी हमारे पास आंसर एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, इन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर इक्वेशन। सो व्हाट वी आर सेइंग, इट इज आल्सो अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दैट वन इज आल्सो अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हम क्या करें, c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दें। अगर मैं क्या करूँ, c इज इक्वल टू 0 रख दूँ, तो मेरा ये जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x। सो इट विल बिकम अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है हमने उसको सॉल्व किया और आंसर हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट के अंदर ही है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कोई इनपुट दे रखा है जिससे आप क्या कर सको, c की एक वैल्यू निकाल सको, तो हम c की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू को पुट करके हम क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व। जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं, तो जो भी पूरा आंसर होता है इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि ये हमको क्या देता है, एक कर्व देता है। और फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत सारे कर्व जनरेट करते हैं। c इक्वल्स टू अगर 0 हो गया तो ये एक कर्व हो गया, c इज इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा तो हमारे पास दूसरा कर्व आ जाएगा 2x प्लस 1। अगर वैसे ही मैं c इज इक्वल्स टू 2 रखूँ तो ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कर्व आ सकते हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हमको क्या मिलता है, एक फैमिली ऑफ कर्व मिलता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हमको गिवन है कि हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट को किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी मेथड के ऊपर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम ट्राई करते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, e की पावर y प्लस 1
cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इज इक्वल्स टू 0। हम कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकें, वेरिएबल को सेपरेट कर सकें। फर्स्ट हम इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे ताकि ये क्या हो जाए, नेगेटिव में हो जाए। तो e की पावर y sin x dy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e की पावर y प्लस 1 cos x dx। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की टर्म है, x की टर्म है और y की टर्म, तो बेटर है हम sin x को नीचे लेके जाएंगे डिवाइड में, और यहाँ पे हमारे पास x की टर्म है, x की टर्म है और y की टर्म है, तो हम इस टर्म को उधर डिवाइड में लेके जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, e की पावर y, इट विल कम दिस साइड, बिकम e की पावर y प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos x अपॉन sin x dx। अब क्या हो गया मेरे पास, y की टर्म सारी एक साइड, x की टर्म सारी एक साइड, इंटीग्रेशन कर देंगे ना। अभी हम इजीली सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, आप हमेशा कांस्टेंट क्या कीजिएगा, एक ही साइड यूज कीजिएगा। आप चाहे प्लस सी इधर लगा सकते हैं, आप चाहे प्लस सी इधर लगा सकते हैं, बेटर है, क्योंकि हम क्या करते हैं, दोनों इंटीग्रेशन का कांस्टेंट एक ही तरफ अज्यूम करते हैं। और अगर मैं इसका सब्स्टिट्यूशन करूँ तो क्या होगा, sin x को अगर हम क्या करेंगे, t पुट करेंगे तो cos x dx आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसको अगर हमें फर्दर कंटिन्यू करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे भी log है और यहाँ पे भी log है, तो फॉर दिस बेटरमेंट हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को भी क्या करेंगे, log c बोल देंगे। चाहे आप c लिखो चाहे log c लिखो, एक कांस्टेंट टर्म है, वो रहेगी तो कांस्टेंट ही, तो आंसर हमारा वही रहेगा। जस्ट फॉर द सेम नोटेशन वी आर डूइंग दैट। नाउ दिस माइनस टर्म विल गो दिस साइड, बिकम द प्लस 1, सो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अरेंज करना सीख रहे हैं। log ऑफ e की पावर y प्लस 1 प्लस log ऑफ sin x इज इक्वल्स टू log c। log a प्लस b क्या होता है, log a भी होता है, तो log ऑफ e की पावर y प्लस 1 मल्टीप्लाई विद sin x इज इक्वल्स टू log c। log will get cancelled, so what we got, e की पावर y प्लस 1 मल्टीप्लाई विद sin x इज इक्वल्स टू c। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, sin x को नीचे लेके जा सकती हूँ और इस प्लस 1 को इस साइड ले जाके माइनस 1 कर सकती हूँ। देखिए इसके बाद की सारी स्टेप्स हम कैसे करेंगे, डिपेंड अपॉन द MCQ। अगर हम इस MCQ को सॉल्व कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के MCQ के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस के अंदर कौन कौन सा फॉर्मेट दिया है, हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हमारा क्या हो चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो चुका है, इसका सोल्यूशन आ चुका है। जस्ट हम इसको अरेंज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड इसके सिमिलर ही है। अगर हम वेरिएबल सेपरेबल ही लगाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पाते, तो उसके लिए हमारे पास सेकंड मेथड है रिड्यूसिंग वेरिएबल सेपरेबल। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या होता है। इसको हम दूसरा मेथड तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम रफली देखें तो हमारे पास 3 ही मेथड से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल है, दूसरा हमारे पास लीनियर होमोजेनियस है, तीसरा हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वेरिएबल सेपरेबल का एक सब पार्ट कह लो। इसके अंदर क्या होता है, कभी जब आपके पास डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल प्रेजेंट नहीं होता है, कि जैसे हम देखिए इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। फर्स्ट हम ये चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है। तो अब अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करती हूँ तो मैं प्रैक्टिकली x के वेरिएबल और y के वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रही हूँ। तो हमको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, कोई सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है कि इसकी जगह अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो क्या मैं फिर वेरिएबल सेपरेबल लगा पाऊंगी या नहीं लगा पाऊंगी। जैसे कि अगर हम देखें x माइनस वाई को हम t पुट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम इंटीग्रेशन में करते थे, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा वेरिएशन रहता है।
कैसे वेरिएशन रहता है, जैसे कि हम जब भी इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन पुट करते, जैसे हमने x की वैल्यू को टर्म्स में t की अज्यूम किया तो हम dx को dt में रिप्लेस कर देते थे। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, दो वेरिएबल्स है। अब हम किसको dt में रिप्लेस करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको x और y के अंदर दे रखा है और अगर आपको x और t के अंदर चेंज करना है, मतलब आपको क्या रिप्लेस करना है, y को, और y कैसा दे रखा है, dy/dx, तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन में, दोनों साइड में डेरिवेटिव कर देंगे x का, मतलब डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्टिव x। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस dy/dx इज इक्वल्स टू, अब t भी एक वेरिएबल है, t को हम कांस्टेंट लेट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dt/dx, माइनस विल गो दिस साइड, सो इट विल बिकम 1 माइनस dt/dx इज इक्वल्स टू dy/dx। तो चलिए इस सब्स्टिट्यूशन को हम ट्राई करते हैं पुट करने का इसके अंदर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy/dx की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस dt/dx इज इक्वल्स टू x माइनस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर। नाउ क्या हम इसको सेपरेट कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। माइनस विल गो दिस साइड बिकम द प्लस, सो ये क्या हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt/dx, ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt/1 माइनस टी स्क्वायर। अब याद आया ये कौन सा इंटीग्रेशन है, क्या हमने पढ़ रखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, यस ये वही है। जितनी अच्छी कमांड आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर होगी, वहीं पे हम इस इंटीग्रेशन के बाद नहीं रखेंगे। हम अभी नया टॉपिक क्या, नया कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको दे रखा है, अगर वो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल है तो आप लगा दीजिए, अगर नहीं तो क्या सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे कि आप उसको वेरिएबल सेपरेबल में बना पाएंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। तो इसको हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 है, सो 1/2 log ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स, इट विल बिकम 1 प्लस टी 1 माइनस टी प्लस सी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ इस आंसर को हमको t में नहीं छोड़ना है, एग्जामिनर ने हमको t के अंदर नहीं दिया है, हमने खुद से अज्यूम किया है यहाँ पे, तो हमको एट द एंड इस t को रिप्लेस करना पड़ेगा, जहाँ पे भी t दे रखा है हमको x माइनस वाई रखना पड़ेगा। तो हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इस 2 को उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्या, सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, ये एक फैमिली ऑफ कर्व है, और वहीं पर अगर मैं सी की वैल्यू को कुछ डाल दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही, ये बन जाएगा पर्टिकुलर इक्वेशन। So with this I am ending this video. Today we have learned the two topics, first order and degree, and the second one how to solve a differential equation. This differential equation I taught only the one method in which we are having the two subtype. Directly we are having the variable separable. Sometimes direct variable separable is not given, they are giving the reducible variable separable. Then how to go with that method, I have explained that. I hope you like this video and I expect we will meet in the interview very soon. Thank you so much.